آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ 27 رجب المرجب منائی جا رہی ہے شب معراج، فضیلتوں والی رات۔ مساجد میں نوافل کا اہتمام، بندگان توحید عبادت میں مصروف۔ الیکشن کمیشن کے اسکواڈ نے اورنگ آباد میں نصف شب کو دی کارروائی انجام۔ ایک 4 ویلر گاڑی سے نقد 18,13,000 روپے برآمد۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ اسکواڈ بھی کر رہا ہے الیکشن کے پس منظر میں تحقیقات۔ شہر اورنگ آباد میں ہو چکی ہے پانی کی شدید قلت۔ رام نگر مکندواڑی کے ساکنان نے کیا سڑکوں پانی کی ٹانکی پر احتجاج۔ پانی ہی کے مطالبے پر ہینا نگر کے ساکنان پہنچے میونسپل کارپوریشن دفتر۔ اور یوم خود تسکینی کی مناسبت سے گھاٹی اسپتال میں رکھی گئی پوسٹرز کی نمائش اور آٹزم جیسے نفسیاتی مرض سے بچاؤ کے لیے کی گئی حاضرین کی رہنمائی۔ خبریں تفصیل سے۔ آج 27 رجب شب معراج کی مناسبت سے مساجد میں نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بندگان توحید پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، علماء دین کے مطابق رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، جبکہ شعبان المعظم آبپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوتے ہیں اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب کرتے ہیں، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت الہی کاٹتے ہیں۔ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت باقی انبیاء اکرام علیہم السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں رجب کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے، اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آپ نے آب کوثر نوش فرمایا، آپ نے جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے، آپ اپنے ساتھ فرض نمازوں کا تحفہ لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ لہٰذا آج 27 رجب المرجب کی مناسبت سے انوار الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ مساجد میں نوافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بندگان توحید اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے لیلۃ المعراج کے بارے میں مزید جانتے ہیں بڑی مسجد جے سنگھ پورہ کے امام قاری شیخ عبداللہ ملی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج شب معراج کے موقع پر ہم تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی روشنی میں ایک بہت بڑا حکم نماز والا عنایت فرمایا ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانب سے تمام مسلمانوں کے لیے نماز کی شکل میں ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے، اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز
तमाम मोमिनीन की मेराज है। जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान से सफ़र आसमान का शुरू किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में रह कर के वहाँ से मस्जिद अक़सा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों का सफ़र करते हुए अर्श इलाही पर पहुँचे और वहाँ पहुँच करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पास हाज़िरी दी और हाज़िरी दे कर के वहाँ पर अल्लाह की बड़ाई बयान की, जिसको आप हम हर नफ़ल, सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज़ नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की शक्ल में पढ़ते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ वहाँ बयान की अर्श पर शब मेराज के मौके पर। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह ताला ने कहा ए नबी तुम हमारे पास आए हो, हमारी बड़ाई बयान की, हमारा सलाम तुम पर हो। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अल्लाह आप हमें मुझ अकेले को तेरी सलामती और रहमत देते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि तेरी सलामती, तेरी रहमत और तेरी बरकतें तमाम मुसलमानों पर हो, तमाम उम्मत पर हो। इसलिए वहाँ पर अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के अल्लाह की रहमत बरकत तमाम लोगों पर हो। और उसी को शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा अर्शे बरी पे जिसदम पहुँचे रसूल अकरम, हक ने कहा कि आओ पर्दा उठा के हमदम, जो मांगना हो मांगो देंगे तुम्हें वही हम, फरमाया मुस्तफ़ा ने या ज़ल जलाल अकरम, उम्मत को बख्श दीजिए अरमा यही है जी का। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतियों को न सिर्फ ज़मीन पर याद किया, बल्कि आज शब मेराज के मौके पर अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आसमान पर अर्श इलाही पर पहुँचे, तो वहाँ पर भी आपको हमको तमाम को याद किया। कौन सा मौका ऐसा न हो कि जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमको याद न किया हो। यहाँ तक कि आखिरी मौका है, इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो जाते वक्त भी वाह उम्मता वाह उम्मता वाह उम्मता, कि हाय मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का कैसा होगा। तुम अर्ज करना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमको तमाम को हर मौके पर याद किया। आज की इस रात के मौके पर भी ये उम्मत अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को कायम करे, उसके लिए नमाज जैसा 5 वक्त का तोहफा इनाम में दिया कि 5 वक्त की नमाजों को हम पढ़े। आज की रात में इबादत करके, या आज शब मेराज का मौका हमें नसीब जब होता है, तो ये मौका और शब मेराज का एक पैगाम है कि हम अल्लाह के घर में हाजिरी देने वाले बन जाए, हमारे मामलात को अल्लाह के घरों में आकर के अल्लाह के हवाले करें। वो अल्लाह जो हमारी हर वक्त मदद करता है, सुनता है, देखता है, हर वक्त हमारा ख्याल रखता है, ऐसे अल्लाह से आपको हमको जुड़ना है। आज की मुबारक रात में जितना हो सके हम इबादत करते रहे। और मेरा ये पैगाम ख़ास तौर से नौजवानों से है कि हम आज की रात में खेल कूद से, सड़कों पर घूमने फिरने से या किसी को तकलीफें देने से परहेज करें। हमारा अपना मजहब तमाम के लिए है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने कायनात, तमाम कायनात के लिए और पूरी उम्मत के लिए और तमाम जानदार बेजान सब के लिए हुजूर सबको रहमत बनाकर भेजा है। तो हम उम्मत भी तमाम के लिए रहमत है। हम किसी को तकलीफ देने वाले न बने, हम रास्तों पर शोर शराबा न करें। नौजवान बच्चे रास्तों पर खेल कूद, क्रिकेट वगैरह, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे हमवतन भाई हैं, उनको भी हमारा पैगाम, हमारी जानिब से अच्छा मैसेज जाए और हम उनको भी खुश करने वाले बने। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मुसलमानों का ख्याल रखते थे, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी ख्याल रखते थे। पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर मुकुंदवाड़ी, रामनगर और अतराफ की बस्तियों के साकिनान ने आज सिडको N5 की पानी की टांकी पर जोरदार एहतजाज किया। नाजरीन, आए दिन शहर में पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है और पानी के मुतालबे पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर और
शहर की पानी की टांकियों पर मुतासरा साकिनान की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े और कारपोरेटर मनोज गांगवे की रहनुमाई में आज मुकुंदवाड़ी, रामनगर, महाड़ा कॉलोनी, मुर्तुज़ापुर, विट्ठल नगर और अतराफ की बस्तियों के साकिनान सिडको N5 की पानी की टांकी पर पहुँचे और वहाँ ज़ोरदार एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि उन्हें 8-8 दिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है और 8 दिन के बाद जब भी पानी फराहम किया जाता है तो दबाव इंतहाई कम होता है और आधे घंटे बाद ही सप्लाई बंद कर दी जाती है। इस सिलसिले में साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े और कारपोरेटर मनोज गांगवे ने जब मुतालिका अफसरान से वजाहत चाही तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जायकवाड़ी डैम से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब अवामी नुमाइंदों ने पानी की टांकी का जायज़ा लिया तो उस वक्त पानी सप्लाई जारी थी, जिस पर वो लोग मुश्तइल हो उठे और उन्होंने टैंकरों में पानी भरने के अमल को रोक दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB खाजी और दीगर अफसरान वहां पहुंचे और मज़ाहिरीन को यकीन दिलाया कि जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। इलाके के साकिनान का कहना है कि सारे शहर को यकसा मिक़दार में और यकसा वक्फे से पानी सप्लाई किया जाए। आमच्या वार्ड क्रमांक 87 विठ्ठल नगर भागामध्ये म्हाडा कॉलनी, मूर्तिजापूर या भागामध्ये आम्हाला 6 दिवसाआडमध्ये अगोदर पाणी होतं। खरं तर शहरामध्ये सगळ्या ठिकाणी 3 दिवसाआड 4 दिवसाआड पाणी देण्याचं महापालिका प्रशासन सांगते, परंतु आमच्या भागामध्ये 8 दिवसाचा गॅप घेऊन 9व्या दिवशी आम्हाला पाणी देत आहेत। आज सकाळी 8 दिवसाला पाणी लागल्याच्या नंतर ज्यावेळेस पाणी सुरू झालं 1 तासामध्ये यांनी पाणी बंद केलं। आम्ही ज्यावेळेस इथं आलो पाण्याच्या टाकीवर, इथं टँकर भरणं सुरू आहे, दुसऱ्या टाक्या भरणं सुरू आहे आणि आमचे चालू सप्लाय यांनी बंद केले आणि आम्हाला सांगतात की जायकवाडीहून पाणी बंद झालं। वेळोवेळी इथं आल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस रजिस्टर चेक केले तर फक्त आमच्या म्हाडा कॉलनी, रामनगर भाग, विठ्ठल नगर भाग या N2 परिसराला सगळ्यात जास्त गॅप देण्याचं काम यांनी केलेलं आहे। आमची एकच मागणी आहे की जर गॅप द्यायचं तर सगळ्या समान, पूर्ण शहराला समान पाणी वाटप द्यावं आणि गॅप जर द्यायचं तर सगळ्यांना यांनी गॅप द्यायला। क्या नाम आपका? मनोज बंसीलाल गांगवे, वार्ड क्रमांक 87 विठ्ठल नगर। महाराष्ट्र शाह छप्परबंद महिला मोलकरनी कामगार संगठना के बैनर तले आज हिनानगर चिकलथाना इलाके की खवातीन भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर पहुंची और पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने के मुतालबे पर ज़ोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में शामिल घरेलू खादमाओं का कहना है कि वो लोग गुज़िश्ता कई बरसों से हिनानगर चिकलथाना में रह रही हैं, मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अब तक वहां पानी सप्लाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। वो लोग पानी हासिल करने के लिए टैंकरों के चार्जेस भी एडवांस में अदा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें 8-8 और 10-10 दिन तक टैंकर फराहम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से उन्हें अपना कामकाज छोड़कर पानी की तलाश में दर बदर भटकना पड़ता है। इन लोगों ने मुतालबा किया कि इलाके में पानी सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त किए जाएँ, बसूरत दीगर वो अवामी तहरीक शुरू करेंगे। इस ज़िमन में एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में मुताल्लिक़ा तंजीम के रियासती सदर उस्मान शाह, GS पटेल, परवीन बेगम, शकीला बेगम और रेहाना खानम के अलावा घरेलू खादमाएँ बड़ी तादाद में शामिल थीं। औरंगाबाद महानगरपालिकेवर एक असं मोर्चा काढून निदर्शन करून आम्ही पाण्याच्या मागण्याकरता आलो आहोत। हिनानगर बाजी बंद करो। आज हिनानगर चिकलठाने के अंदर हमारी माँ बहनें, हमारी खास करके मोलकरीन कामगार संगठना की महिला जो है तो पानी बूंद बूंद के लिए तरस गई। आज 8 दिन में 15 दिन में एक टैंकर आता, वो भी 300 रुपये में एक ड्रम देता। आज ये परेशान है। आज वोट लेने वाले आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम महानगर पालिका तरफ जाओ, तो हमारी महानगर पालिका क्या सो रही है क्या? गौर गरीब जनता को अगर पानी नहीं पुरा सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया का इन्होंने पानी बंद करके जो है, तो हमारे को आज रमज़ान आने वाले महीने के अंदर 1 महीने के बाद रमज़ान का महीना चालू होने वाला है। आज वहाँ पानी नहीं, आज पूरी मोलकरीन महिला काम धंधे छोड़ के जो है तो महानगर पालिका के ऊपर निदर्शन करने आई है। तो मेरी कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से अदबन गुजारिश है कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारा पानी का बंदोबस्त करना, नहीं तो हम लोकशाही मार्ग से जो है तो अंदर जाके इनको बैठना, इनको ये कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। हमारे हिनानगर में पानी की तकलीफ बहुत है, कोई नगर सेवक देखता ना कोई सरपंच देखता। हमारे को 1-1 लोटे पानी तरस रहे। हम मोल टैंकर लेते हैं तो 50 रुपए ड्राम, 70 रुपए ड्राम, वो भी नहीं मिलता। हमारे रमजान है, हम क्या करेंगे? महिला काम को जाएंगे कि पानी लाएंगे? 400 रुपए भरना लगते है
एक ड्रम घ्यायला गेला तर एक टँकरवाला म्हणतो 70ला द्या, एक म्हणतो 50ला द्या, त्याच्यात भी आम्हाला भेटत नहीं। ऑटिज्म डे की मुनासिबत से घाटी अस्पताल में पोस्टर्स की नुमाइश रखी गई, जहां इस मर्ज से मुताल्लिक अवाम की रहनुमाई की गई। ऑटिज़म एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें मरीज़ खुद की तस्कीन के लिए बचकाना ख्याली पुलाव बघारता रहता है। लिहाजा ऑटिज़म डे यानी यौम खुद तस्कीनी के मौके पर पोस्टर्स की एक ख्याली नुमाइश घाटी अस्पताल में रखी गई, जिसका इफ्तिताह डीन डॉक्टर कानन एडिकर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शहरियान को बताया गया कि इस नफ्सियाती मर्ज से किस तरह बचा जा सकता है। इस मौके पर डिप्टी डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे और मेडिकल स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने हाजरीन की रहनुमाई की। तुमचं काम खूप चांगलं आहे, तुमच्या कामाला आमच्याकडून सलाम आणि जी काही आम्ही मदत करू शकतो ती आम्ही नक्कीच तुमच्या संस्थेला करू। या कार्यक्रमासाठी जमलेले सगळे प्राध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी आणि सगळ्यात महत्त्वाचा थोडा वर्ग जो वरून ऐकतो आहे, रुग्णांचे नातेवाईक, तो क्राऊड माझ्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे। कारण खरोखर हे पोस्टर एक्झिबिशन भरवणं हीच एक खूप सुखावह अशी कल्पना आहे, कारण की आजपर्यंत कोणाला ती सुचली नव्हती की ऑटिझम डे सुद्धा आपण इथे करू शकतो आणि एखादा पोस्टर एक्झिबिशनचं आयोजन करणं। मला असं आठवतं की 94 साली आम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा ह्याच प्रांगणामध्ये ब्रेस्ट फिडिंगचं केलं होतं, तेव्हा सगळे हसले होते की ते ब्रेस्ट फिडिंग काय प्रदर्शन करायचं, लोकांना दाखवायचं, त्याच्यावर बोलायचं, अशी बरीच टीका झाली। पण कुठल्या टीकेला भीक न घालणे हा माझा खूप स्वभाव आहे, त्यामुळे ह्याच्यात सुद्धा आम्ही सातत्याने ते एक्झिबिशन सुरू ठेवलं आणि त्याचा आता खूप फायदा होतो। तसंच हे जे एक्झिबिशन तुम्ही आज इथे अरेंज केलं आहे त्याच्यामुळे बरेच फायदे आहेत। सगळ्यात पहिला फायदा मी नेहमी म्हणते की ज्या व्यक्तीने तयार केलं आहे पोस्टर त्याला जास्त शाबासकी जायला पाहिजे। नंबर 1 की त्यांनी खूप सुंदर एक निर्मिती इथे तयार केलेली आहे आणि ही निर्मिती तयार करत असताना त्या व्यक्तींनी जो ह्या विषयावर अभ्यास केला असेल तर त्या अभ्यासासाठी त्यांना दुसऱ्या टाळ्या मिळायला पाहिजे। बहुजन वंचित आघाड़ी के तायीद करता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने आज औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल उन्होंने एक शानदार रैली निकाली और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि बुनियादी सहूलतों से महरूम और हुकूमत की लापरवाहियों के शिकार पसमानदा तबक़ात को उनके जायज़ हुकूक़ दिलाने और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए भारी बहुजन महासंघ के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने पसमानदा तबक़ात की मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों को मुत्तहिद करके बहुजन वंचित आघाड़ी कायम की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल हो गई। रियासत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों से बहुजन वंचित आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं, मगर औरंगाबाद पार्लिमानी हलका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए छोड़ दिया। लिहाजा एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने काफ़ी गौर खौज के बाद एमएलए इम्तियाज़ जलील को यहां से उम्मीदवारी दी, जिसके बाद आज एमएलए इम्तियाज़ जलील ने अपने हज़ारों हामियों के साथ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल उन्होंने भड़कल गेट पर मौजूद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए शहर में एक रैली निकाली, जिसमें एमआईएम के सीनियर कायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, एमआईएम के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी, शेख अहमद अब्दुल अज़ीम और भारी बहुजन महासंघ के दीगर रहनुमाओं के अलावा हर तबके के हज़ारों अफराद शामिल हुए, जो अपने हाथों में नीले, हरे, ज़ाफ़रानी रंग के झंडों के अलावा तिरंगे भी लिए इस जुलूस में शामिल हुए और ज़ोरदार नारे लगाते हुए ये काफ़िला ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां एमएलए इम्तियाज़ जलील, भारी बहुजन महासंघ के शहर सदर और मुख्तलिफ तबक़ात के 5 नौजवानों को अपने साथ लेकर
इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे और अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। हे शक्ती प्रदर्शन नाही होतं। खरी गोष्ट हे आहे की मागच्या 20-25 वर्षापासून हे शहराचा वाटोळा करून टाकलेले आहे इकडच्या स्थानिक नेत्यांनी। इथे औरंगाबादमध्ये मागच्या 20 वर्षापासून शिवसेनेचे खासदार आहे। एका काळात हे शहर आहे जे एशिया खंडातला सगळ्यात वेगवान फास्टेस्ट डेव्हलपिंग सिटी होता। या 20 वर्षामध्ये असं का झाला की आम्ही इतकं मागे पडलो? याची खरी आपण ॲनालिसिस केलं तर असा काढण्यात येते की या शहरामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणूक आली तर त्यांचा एजेंडा काय असायचे? ते रस्ते, पाणी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स ते नाही असायचे। त्यांचा एजेंडा फक्त हिंदू, मुस्लिम, औरंगाबाद, संभाजीनगर, मंदिर, मस्जिद, खान पाहिजे का बांध पाहिजे ह्याच मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूक लढवलेली आहे। आता जे कट्टर शिवसैनिक आहे ते पण आम्हाला सांगतं की साहेब आता खूप झालेला आहे, आम्हाला पण विकास पाहिजे, आम्हाला पण पाणी पाहिजे, आम्हाला पण चांगले रस्ते पाहिजे, आम्हाला पण आमच्या मुलांना नोकऱ्या पाहिजे, जॉब्स पाहिजे, इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे। आणि हे तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला परिवर्तन करावंच लागेल। आणि आज जे हजारोच्या संख्येने लोक इकट्ठा झाले होते ते सगळ्या जाती धर्माचे, मला तरी वाटतं की हे पहिल्यांदाच औरंगाबादमध्ये कित्येक वर्षापासून हे झालं असेल की सगळ्या जाती धर्माचे लोक सगळे आपले आपले झेंडे घेऊन आज सोबत आले होते। म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की आज सगळं औरंगाबाद आमच्या सोबत आला होता, कोणत्या एक जातीचा, कोणत्या एक धर्माचा नाही। आणि आज हे इलेक्शन जे आम्ही लढणार आहे ते फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार आहे आणि फक्त लढणार नहीं आहे, जिंकणार पण आहे। देखिए, आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM की तरफ से हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि औरंगाबाद में कई सालों के बाद एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ के सभी जात, धर्म, मज़हब के लोग अपने अपने झंडे, रंग बिरंगी झंडे लेकर यहाँ पर पहुँचे हमारे इस नॉमिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। ये एक वही औरंगाबाद है जो आज से कई साल पहले यहाँ पर देखा गया था। लेकिन जब से शिवसेना आई तो उनका मुद्दा सिर्फ यही हुआ करता था, इलेक्शन जब भी आता हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद संभाजीनगर या खान चाहिए या बांध चाहिए, इन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ते। अब जो कट्टर शिवसैनिक है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भले ही अलायंस के अंदर आए लेकिन वो भी धीरे से कान में बोलते हैं कि इम्तियाज़ भाई खैरे का बहुत हो गया, इसको गिराओ अब किसी तरह से। तो अब ऐसी सूरत आ गई है, हम लोगों ने यहाँ पर आए, अपना फॉर्म भरे है, लोकतंत्र है, हर कोई अपना ताकत दिखाएगा, आजमाएगा, जनता जिसे चाहेगी। हम समझते हैं कि आज औरंगाबाद को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कचरा का जो समस्या है, ये पूरे देश में हमारे शहर का नाम बर्बाद किया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बैठे हुए हैं महानगर पालिका में, यही शिवसेना वाले हैं। जो खासदार साहब पिछले 20 साल से बैठे हैं, इनका सिर्फ एक ही धंधा चलता रहा, कचरे में से कुछ पैसा मिलता क्या, पानी में से कुछ पैसा मिलता क्या, सड़क बनाने में से कुछ कमीशन मिलता क्या। तो ये जो धंधे, एक संस्कृति इन्होंने महानगर पालिका के अंदर और औरंगाबाद के अंदर शुरू रखी थी कि जनता जाए भाड़ में, अपने को क्या मिलता है ये, अब हम उनको क्या देने वाले हैं। 20 साल हो गया है, अब ये रेजिग्नेशन लेटर लो और घर पे जाके सो जाओ। खत्म करेंगी? बिल्कुल यकीनन हम तारीख ये करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, वो समाज जिन्हें कभी भी यहाँ पर कोई राजनीतिक ताकत नहीं दी गई थी, उन सभी लोग एक साथ मिलकर आए, सभी समाज एक साथ मिलकर आए हैं और यकीनन एक परिवर्तन की ज़रूरत है। इस वजह से आज इतने सारे लोग सड़कों के ऊपर तपती धूप में जब आते हैं तो ना तो उनको पैसा दिया गया, ना कोई गाड़ियाँ लाई गई उनके लिए, ये खुद से चल कर आए और उन्होंने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाई कि अब बहुत हो चुका है, अब की बार अम्बेडकर सरकार।
मजहबी रहनुमा शांतिगिरी महाराज किसी भी पार्लिमानी हलके से इंतखाब नहीं लड़ेंगे। ये इत्तला आज बजाते खुद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। शहर से निकलने वाले कचरे को जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए मुकर्रर करदा पी गोपीनाथ रेड्डी के मुलाजमीन ने आज मुताल्लिका एजेंसी की मनमानी के खिलाफ एहतजाज करते हुए काम बंद आंदोलन किया। बहुजन कामगार शक्ति संगठन के शहर सदर राजू निसार के मुताबिक मुताल्लिका कंपनी ने जोन नंबर 2, 7 और 9 की हुदूद में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए लेबर्स और ड्राइवर्स तो मुकर्रर किए, मगर कंपनी लेबर एक्ट के मुताबिक उन्हें सहूलतें फराहम नहीं कर रही हैं और न ही कानून के मुताबिक उन्हें तनख्वाहें अदा की जा रही हैं और न ही उन्हें ओवर टाइम दिया जा रहा है, जबकि रोज़ाना लेबर्स और ड्राइवर्स से ड्यूटी आवर से कहीं ज़्यादा काम लिया जा रहा है। आम तातीलात के अलावा इतवार को भी उन्हें काम पर बुलाया जाता है, मगर उन्हें किए गए ज़ायद काम का मुआवजा अदा नहीं किया जाता। एजेंसी के ज़िम्मेदारान हर माह उनकी तनख्वाहों से पीएफ और ईएसआई के नाम पर 3000 रुपये तो वज़ा कर रहे हैं, मगर आज तक उन्हें पीएफ अकाउंट नंबर और पेमेंट स्लिप ही नहीं दी गई। मुलाजमीन के साथ कंपनी भेदभाव कर रही है और उन्हें बेजा हिरासां किया जा रहा है। ज़बरदस्ती मुलाजमीन से जुर्माना भी वसूल किया जाने लगा है। जब मुलाजमीन इन ज़्यादतियों से मुताल्लिक़ कंपनी के ज़िम्मेदारान से बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है। लिहाजा कंपनी की ज़्यादतियों से बेजार होकर आज जोन नंबर 9 की हुदूद में काम करने वाले मुलाजमीन रमानगर में जमा हो गए और काम बंद एहतजाज शुरू कर दिया। मामले की इत्तला मिलते ही मेयर नंद कुमार घोड़िले वहां दौड़े चले आए और मुलाजमीन के मसाइल जानने के बाद उन्होंने एजेंसी के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि उनके मसाइल बातचीत के ज़रिए फौरी हल किए जाएं। मेयर की मुदाखलत के बाद मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। अगर मेरे पिता इजाज़त दें तो असम्बली इलेक्शन में मैं ज़रूर हिस्सा लेना चाहूँगा। इन ख्यालात का इजहार युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे ने किया। शिवसेना के बानी सदर आंजहानी बाड़ा साहब ठाकरे के पोते और शिवसेना के मौजूदा सदर उद्धव ठाकरे के फर्जंद व युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे ने रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर टॉक शो की तर्ज पर आदित्य संवाद का सिलसिला शुरू किया है, जिसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ शहर औरंगाबाद से अमल में आया। ये प्रोग्राम एसबी कॉलेज में रखा गया, जिसे लोकसभा चुनाव के पस मंज़र में देखा जा रहा है और इसे शिवसेना के उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर भी कहा जा रहा है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ आदित्य संवाद प्रोग्राम में नौजवानान कसीर तादाद में शरीक हुए, जिनके साथ आदित्य ठाकरे ने सेल्फी भी ली। आदित्य ठाकरे ने कचरा, पानी और प्लास्टिक बंदी जैसे मौज़ूआत पर भाषण दिया और नौजवानों के सवालों के जवाब देते हुए उन्हें खुश करते दिखाई दिए। किसी ने पूछा कि
MP चंद्रकांत खैरे ने औरंगाबाद के लिए गुज़िश्ता 20 बरसों में क्या किया, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि MP का काम दिल्ली की पार्लियामेंट में होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं होता। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चंद्रकांत खैरे ने उनके साथ मिलकर शहर औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया और यहाँ सिटी बस सर्विस भी शुरू की। एक नौजवान ने आदित्य ठाकरे से पूछा कि इलेक्शन लड़ने के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर उनके पिता उद्धव ठाकरे इजाज़त देंगे तो वो ज़रूर असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आदित्य ठाकरे ने 60 मिनट के टॉक शो के दौरान नौजवानों, लड़कों और लड़कियों को बार बार खुश करने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पब और बार नाइट लाइफ नहीं होते, अलबत्ता होटल्स रात भर शुरू रहना चाहिए। यहाँ तक कि वो अपनी शादी की बात को भी टाल गए और अपने पॉलिटिकल कैरियर को ज़्यादा अहमियत देते हुए दिखाई दिए। वाज़ेह रहे कि आदित्य संवाद का सिलसिला ऐन लोकसभा इलेक्शन के मौके पर शुरू किया गया है, लिहाजा शहर में चर्चे जारी हैं कि शिवसेना, युवा सेना और ठाकरे परिवार के नौजवान कायद आदित्य ठाकरे शिवसेना को कितनी सीटें दिला पाते हैं। ते प्रमुख अग्रणी नेते होते। अनेक प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये आहेत, त्यातला पहिल्या प्रश्नाकडे आपण बोलूया। आणि दुसरं असं की एक मुद्दा प्रामुख्याने होता उत्सवी पर्वामध्ये 55 कोटी, म्हणजे हा सरकारी आकडा आहे, थोडासा इकडे तिकडे असू शकतो, नाही सुद्धा भाग नाही, पण जवळजवळ 55 कोटी नव उमेदवार म्हणजे मतदार आहेत, ते मतदान करणार आहे। या दृष्टिकोनातून तुम्ही कसं बघता, तुम्ही तरुण तडफदार नेतृत्व आहे? नक्कीच मला माझं पहिलं मत आठवतं 18 वर्षाचे असताना, आणि ती जी एक्साइटमेंट असते की मी माझं सरकार घडवणार, मी माझं सरकार बनवणार। अर्थात काही काही मतं सरकार पाडू पण शकतात, पण ही मतं खूप महत्त्वाची असतात, कारण आपण इथे दिसतोय का मी सगळ्यांना की मी थोडं असं बसतो आता। तर ही जी मतं असतात, मला वाटतं सगळ्यात निर्णायक मतं असतात, सगळ्यात महत्त्वाची मतं असतात, कारण हे पहिलं इम्प्रेशन असतं आणि आपण बोलतो ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। त्या मिनिटावर तुम्ही कोणाला मतदान करताय, कुठच्या पक्षाबरोबर जाताय, कुठच्या उमेदवाराबरोबर जाताय। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी जुर्माने की रकम अदा करने की सहूलत दी जा रही है, जिसके तहत आज 66 अफराद ने ऑनलाइन जुर्माना अदा किया। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने दी है। औरंगाबाद शहरामध्ये 2 तारखेपासून आपण ई ट्रॅफिक चलानची सुविधा चालू केलेली आहे। ह्यामध्ये ज्यांना चलान करण्यात येईल त्यांच्याकडून त्यांचे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यावर आपण फाईनचे पैसे कलेक्ट करू शकतो। त्याचप्रमाणे आपले कॉन्स्टेबल स्टाफकडे एक डिव्हाइस असेल ज्यामध्ये ऑफेंडिंग व्हेकल यांचे फोटोग्राफ्स येईल आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे लायसन्स नंबर वगैरे त्यामध्ये टाकून त्यांना फाईन करण्यात येईल आणि ही सर्व डेटा आमच्याकडे डिजिटली अवेलेबल रहेगी। वज़ीर आज़म फसल बीमा स्कीम के तहत ज़िले के 3 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था, जिनके बैंक खातों में 148 करोड़ 35 लाख रुपये जमा करवाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता साल बारिश का अंदाज़ा लगाते हुए प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत ज़िले के मुख्तलिफ़ तालुकाजात में तकरीबन 3 लाख किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाया था, जिसका फ़ायदा आज इन किसानों को दिखाई दे रहा है। ज़िले में फसल बीमा के लिए एफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड नामी कंपनी का इंतखाब किया गया था। इस कंपनी के ज़रिए ज़िले के 3,11,000 किसानों ने मक्का, बाजरा, जवार, सोयाबीन के अलावा दीगर फसलों का बीमा करवाया था, जो मंजूर किया जा चुका है। इस मंजूरी के बाद द्रास किसानों के बैंक खातों में बीमे की रकम जमा की जा रही है। बताया जाता है कि अब तक किसानों के खातों में 148 करोड़ 35 लाख रुपये जमा किए जा चुके हैं। करमाड़ की एक होटल में मारपीट के दौरान एक शख्स की मौत वाक़ हो गई थी। महलूक के उर्सा ने आज पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस पर हड़ताल शुरू की है। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस खातियों को बचा रही है, इसीलिए पुलिस ने खातियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया है।
शेंद्रा के किसान दिनकर कचकोरे की 7 जनवरी 2019 को करमाड़ की एक होटल में मारपीट के दौरान मौत वाक़ हो गई। इस मामले में करमाड़ पुलिस ने दिफा 304 के तहत केस दर्ज किया है, जिससे महलूक के वर्सा शदीद नाराज़ हैं और उन्होंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर पर हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि कचकोरे के साथ होटल में मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने दिफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कचकोरे के उर्सा ने मुतालबा किया और इंतबाह दिया कि मज़कूरा मामले में दिफा 304 की बजाय दिफा 302 के तहत शिकायत दर्ज की जाए और जब तक उनका ये मुतालबा पूरा नहीं हो जाता वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। करमाड पोलीस स्टेशन नाही का रायकर साहेबांना म्हणजे आम्हाला बोलवीत होते, तिथं बाहेर उभं करून देत होते आणि आरोपीला मध्ये चहा पाणी सगळं आणि आम्हाला म्हणायचे बसा होईन आणि मग आम्हाला काढून द्यायचे वापिस आणि त्यांना द्यायचे सोडून मागून। नंतर त्याने काहीच नाही केलं, मग पैसा खाल्ला आणि सोडून दिले आरोपी गाव। आणि आज आम्ही उपोषणाला बसणार आहे ना, तर आज आम्हाला बसून बी देईन नाही आज आणि उपोषण करू नका म्हणते। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 27 रजबुल मुरज्जब मनाई जा रही है शब मेराज, फजीलतों वाली रात। मसाजिद में नवाफिल का एहतमाम, बंदगाने तौहीद इबादत में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन के स्क्वाड ने औरंगाबाद में निस्फ शब को दी कार्रवाई अंजाम। एक 4 व्हीलर गाड़ी से नकद 18,13,000 रुपये बरामद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा स्क्वाड भी कर रहा है इलेक्शन के पस मंजर में तहकीकात। शहर औरंगाबाद में हो चुकी है पानी की शदीद किल्लत। रामनगर मुकुंदवाड़ी के साकिनान ने किया सिड़को पानी की टाकी पर एहतजाज। पानी ही के मुतालिबे पर हिनानगर के साकिनान पहुंचे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर। और यौम खुद तस्कीनी की मुनासिबत से घाटी अस्पताल में रखी गई पोस्टर्स की नुमाइश और ऑटिज़म जैसे नफ्सियाती मर्ज से बचाव के लिए की गई हाजरीन की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।